Hello students, welcome to your science class. Today we are going to learn a new chapter number 4, that is food and homes of animals. Okay students, in this chapter we are going to learn and get an idea of animals, what they eat and where they live. And what are the points we are going to read in this chapter? Plant eaters, grain eaters, insect eaters, flesh eaters and homes of animals. हम लोग ये चैप्टर पे पढ़ेंगे प्लांट ईटर्स जो पेड़ पौधे खाता है, ग्रेन ईटर जो दाने खाता है, इंसेक्ट ईटर्स जो कीड़े मकोड़े खाता है, फ्लेश ईटर्स जो मांस खाता है, मांस मच्छी, एंड होम्स ऑफ एनिमल्स जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. Okay, so let's start with the chapter. Animal need food to live. जैसे हम लोग का खाने का ज़रूरत होता है, we need food to grow and live. So animals also similarly need food to live. Different animals eat different kinds of food. जैसे हम लोग को किसी को मिठाई पसंद है, किसी को नॉनवेज फूड पसंद है, किसी को वेज फूड पसंद है. सो एनिमल्स ऑल्सो ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. एक जगह से दूसरी जगह पे जाके खाने के खोज में जाते हैं और खाना खाते हैं. ठीक है, लाइक वी ऑल्सो गो टू द मार्केट टू बाई फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉर आवर फूड. सो दे ऑल्सो go here and there, move from one place to another in search of food. Now first one, plant eaters. What are plant eaters, students? Some animals eat only grass and leaves. They are called plant eaters, like cow, goat and horse. So see, horse, cow, goat ये सब क्या खाते हैं? घास फूस, पेड़ पौधे ये सारे खाते हैं. So they are called plant eaters. Plant माने पेड़ पौधे. Okay, so they all are plant eaters. Why? Because they eat only grass and leaves. What are the pictures of plant eaters? What are the examples? Horse, cow, goat. Children, you'll have to learn the definitions, spellings as well as the examples. Okay, so next, after plant eaters we come to grain eaters. Some animals eat only grain. Some animals eat only grain. They are called grain eaters. Okay, कुछ चिड़िया और एनिमल्स जो सिर्फ दाने खाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन ईटर्स. ग्रेन मतलब दाना, छोटा छोटा दाना खाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन ईटर्स. What are the examples of grain eaters? Sparrow, pigeon, parrot and hen. ठीक है, see this is a sparrow, a bird. Parrot and pigeon, कबूतर. ठीक है, ये सारे क्या खाते हैं? छोटा छोटा दाना खाते हैं. ये लोग और कुछ चबा नहीं सकते, तो इसीलिए छोटा छोटा दाना खाते हैं. मुर्गी भी दाने खाती है. ओके, सो लर्न व्हाट इज ग्रेन ईटर एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रेन ईटर्स. नेक्स्ट वी कम टू इंसेक्ट ईटर्स, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं. सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. कुछ एनिमल जो कीड़े मकोड़े खाते हैं और केचुआ, वर्म्स मतलब केचुआ, वो भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटर्स लाइक स्पाइडर, लिजर्ड एंड कैमेलियन. सी, वी हैव ऑल सीन लिजर्ड ईटिंग कॉकरोच और फ्लाइज, स्पाइडर ईटिंग स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, है ना. हम लोग ये सारे देखे हैं. छिपकली को देखे कॉकरोच को खाते हुए, स्पाइडर को देखे छोटा छोटा कीड़े मकोड़े खाते हुए. ओके, सो दीज आर ऑल इंसेक्ट ईटर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट ईटर्स आर लिजर्ड, chameleon and spider. Next we come to page number 21. Here we have flesh eaters. ठीक है, जो सिर्फ मांस खाता है. What are they? Some animals eat the flesh of other animals. They are called flesh eaters, like lion, wolf, tiger. See, lion is eating flesh of another animal. Tiger is also eating flesh of another animal. ठीक है, ये सारे सिर्फ मांस खाते हैं. So क्या क्या
एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्लैश ईटर्स हैं, लायन, वुल्फ एंड टाइगर. Okay students, now we will come to homes of animals. Okay, so we have already read in social studies chapters homes of animals. Now we will read again in science, so this will be a revision for you. Okay, let's start. Animals also need homes to protect themselves from heat, cold, rain and other animals. पशु पक्षियों को भी घर का ज़रूरत होता है. क्यों? बिकॉज हम लोग जैसे रहते हैं घर में, तो हम लोग बहुत कड़े धूप से, हीट से, बारिश से, फिर ठंड से, फिर दूसरे पशु पक्षियों से बचने के लिए हम लोग घर में रहते हैं. कोई भी डेंजर से बचने के लिए हम लोग घर में रहते हैं. वैसे ही एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स. एनिमल्स को भी घर का ज़रूरत है. अब हर घर जैसे सेम नहीं होता हर किसी का घर, वैसे डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम. कुछ एनिमल्स खुद से अपना घर बना सकते हैं, कुछ एनिमल्स का घर हम लोग बना देते हैं. ठीक है, जो कुछ एनिमल्स जो खुद से घर बना सकते हैं वो कौन है? Who is this? Which is this? This is a bird. Bird makes its own nest. ठीक है, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है. चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में. बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. रैबिट लिव्स इन अ बरो. बरो भी वो खुद अपने आप बनाते हैं. डेन. अ लायन लिव्स इन अ डेन. उसको केव मिल जाता है लायन को, तो लायन वहीं पे रहते हैं. ठीक है, वो हम लोग का बनाया हुआ चीज़ नहीं है. इन सारे एनिमल्स के घर हम लोग नहीं बनाते, वो लोग खुद अपना घर ढूंढते हैं और घर बनाते हैं. ओके. स्नेक लिव्स इन अ होल. वो मिट्टी में अपना होल बना लेते हैं. ठीक है. सो अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, रैबिट लिव्स इन अ बरो, लायन लिव्स इन अ डेन एंड स्नेक लिव्स इन अ होल. नाउ एनिमल्स ऑल्सो लिव इन होम्स मेड बाय अस. यहाँ पे कुछ एनिमल्स का पिक्चर है जिसके घर हम लोग बना देते हैं. वो लोग अपने आप से घर नहीं बना सकते. जैसे कि काउस कहाँ रहते हैं? शेड में. वी मेक शेड फॉर काउस. हम लोग बना देते हैं उसका शेड. ठीक है, काउ जहाँ पे रहते हैं उनका घर हम बना देते हैं. सो काउस लिव्स इन अ शेड. वी मेक स्टेबल फॉर हॉर्सेस. हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में. हॉर्स के घर का नाम है स्टेबल, तो स्टेबल भी हम लोग बना देते हैं. एंड डॉग लिव्स इन अ केनल और डॉग हाउस. ओके, सो केनल भी हम लोग बना देते हैं, डॉग हाउस हम लोग बना देते हैं, हॉर्स का स्टेबल हम लोग बना देते हैं, एंड काउ का शेड भी हम लोग बना देते हैं. सो काउस लिव्स इन अ शेड, डॉग्स लिव्स इन अ स्टेबल एंड dogs lives in a kennel and horse lives in a stable. Okay, and bird in a nest, rabbit in a burrow, lion den and snake in a hole. Okay, these are the homes for all animals. So students, your task will be to read the chapter, read on your own, practice reading on your own, then learn all the spellings, learn all the definitions of plant eaters with examples, grain eaters with examples, insect eaters with examples, flesh eaters with examples, and homes for animals. Homes that are made by animals themselves and homes that are made by person. Okay, homes of animals that are made by us. Okay, and what are their homes called? Okay students, so this is the task for today. Go through the chapter thoroughly and try doing objective type question and answers. Thank you. Take care. Learn all the spellings. Bye bye.